Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will start off with the different components of the digestive system of human beings. Basically a very important component of chapter 12, that is nutrition. तो specifically अब हम human beings में देखेंगे कि how the food passes through the different phases or different components of its digestive system in human beings, and how it is digested and absorbed in different components. So after covering the different components of digestive system, first of all we will see that how food passes through different phases within the oral cavity, how it is swallowed. Finally, we will cover the concept of the peristalsis and the antiperistalsis. So the learning objective of this lecture include a highlight of the different components of a digestive system in case of human beings, different phases of digestion that exist within the oral cavity, how then this digested food in the oral cavity it is swallowed, and what is the difference between peristalsis and antiperistalsis and how does it occurs. Different components of digestive system की अगर हम बात करें in case of human beings, so the food is taken in through the oral cavity, then it passes through the esophagus, that is one of the very important component through which the oral cavity is connected with the stomach. In the stomach में जाने के बाद it is going to be mixing up with the acid that is secreted within this, जिसकी हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, and then it is passed into the intestine that is basically composed of two components, the small and the large intestine. इसमें digestion और absorption होने के बाद it passes into the rectum and then into the anus, through which the waste material is excreted out. So the main absorption of the food, or the final absorption, is going to occur in this portion, that is the intestine, specifically the small intestine portion. So the first component of our digestive system is the oral cavity. So सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ओरल कैविटी में जो है हमारा फूड किन किन डाइजेस्टिव फेज से गुजरता है. So the first phase within the oral cavity, that is the sensation and selection of the food. ठीक है कि वो जो भी चीज़ हम अपनी ओरल कैविटी में लेके जा रहे हैं उसके सबसे पहले तो हम एक तो देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो खाने में चीज़ हमें देखने में अच्छी लग रही है नहीं, देन वी ब्रिंग इट इन द ओरल कैविटी. फिर हमारी ओरल कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाती हैं जो कि हमें उस खाने को सेंस करने में हेल्प करती हैं. सबसे पहले तो हम जब जैसे ही खाना अपने मुंह में लेके जाते हैं तो वी हैव अ मस्कुलर ऑर्गन, दैट इज़ द टंग, जिसकी वजह से हम उसकी सेंस ऑफ टच हमें आ जाती है कि वो फूड जो है वो सॉलिड है या सेमी सॉलिड है या किस कंडीशन में. ठीक है, सो दैट इज़ फूड सिलेक्शन. ठीक है, जिसमें कि हमारी सेंस ऑफ साइट और जो सेंस ऑफ टच है, ठीक है, थ्रू आवर हैंड्स एंड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, जब हम खाने को लेके जाते हैं तो उस बेस पे हम फूड को सिलेक्ट करते हैं. उसके अलावा वी कैन ऑल्सो सेंस इट एज वेल व्हेन वी प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ आवर टंग. देन ऑब्वियसली जब भी हम खाने को क्लोजर टू आवर ओरल कैविटी लेके आ रहे हैं, देन वी कैन ऑल्सो स्मेल दैट कि उसकी स्मेल अच्छी है या नहीं है. ठीक है, इवन ओरल कैविटी में जब हम उस फूड को ले भी जाते हैं, even at that time we can smell that particular food component that we have placed in our oral cavity. फिर हमारी sense of taste जो है इसमें involve हो जाती है. ठीक है, so the muscular and the sensory organ that is involved readily in this process, that is our tongue. ठीक है, that is a muscular organ. उसके अलावा इसके ऊपर जो पेपिलाज होते हैं that contain the taste bud, उसकी बेस के ऊपर हम खाने को जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सेंस ऑफ साइट आ जाती है हमारी, उस बेस पे भी हम फूड सिलेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, कि हमने उसको खाना है या नहीं. ठीक है, उसके अलावा जब हम ओरल कैविटी में उसे ले जाते हैं तो सेंस ऑफ टच
और टेस्ट की बेस पे भी अगर वो हमें अच्छा नहीं महसूस होता तो वी कैन ऑब्वियसली रिमूव इट फ्रॉम आवर ओरल कैविटी। तो फूड जो है दैट गेट्स रिजेक्टेड विद इन द ओरल कैविटी राइट अवे इवन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मस्कुलर और सेंसरी ऑर्गन है जिससे कि हम उस फूड पार्टिकल को टंग की सरफेस पे फील भी कर सकते हैं एंड वी कैन सेंस इट्स टेस्ट एज वेल, ठीक है। सो दैट इज़ आवर टंग, ठीक है। तो फर्स्ट फेज इन द ओरल कैविटी दैट इज़ द फूड सिलेक्शन एंड सेंसेशन, ठीक है, कि किस टाइप का खाना हम मुंह में लेके जा रहे हैं और हाउ डज इट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के केस में ऑब्वियसली हमारे पास टंग की सरफेस के ऊपर जो पेपिला हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स, they are very significant in this process. Now once the food has been selected and it has been sensed कि वो बिल्कुल that it has a pleasant taste, so that is now then masticated within the oral cavity, ठीक है। So second phase of digestion in oral cavity is the mastication in which our teeth are involved, ठीक है। Teeth within the oral cavity, there are obviously four sets of teeth. Two of them are the anterior teeth known as the canines and the incisors that are used for biting and tearing of the food. Secondly we have the premolars and molars जो कि उसको further small pieces में उस food को जो है वो grind करेंगे, ठीक है। सो साथ ही साथ जो है हमारा फूड जो कि स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो मिक्सिंग अप विद द सलाइवा जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि पार्शली कुछ फूड कंपोनेंट की जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो ओरल कैविटी में ही करवाना शुरू कर देंगे, सो दैट ना देन इट कैन बी पास्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज़ द एसोफेगस, ठीक है। तो मैस्टिकेशन का क्या मकसद है, ताकि फूड जो है वो इजीली एक दो सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाए आफ्टर इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन बाय आवर टीथ एंड देन इट इज़ सो एंड देन इट ऑल्सो गेट्स रेडी टू बी forwarded to our alimentary canal or the esophagus to reach the stomach. Now in order to understand the fact that what is the role of saliva when the food is under the process of mastication, how saliva helps in somewhat digestion or absorption of certain nutrients from the food, we need to know that it is secreted from three very important or the major salivary glands known as the parotid, submandibular and the sublingual gland. इनके नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सबलिंगुअल ऑब्वियसली अंडर द टंग, सबमैंडिबुलर दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द मैंडिबल, पैरोटिड ग्लैंड जो है बिल्कुल जहाँ पे हमारा ईयर लोकेटेड है बिल्कुल उसके फ्रंट के ऊपर लोकेशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। और मेन जो कॉम्पोजिशन है सलाइवा की दैट इज़ ऑब्वियसली द फ्लूइड्स दैट इज़ मेनली वाटर, उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स एंड डिफरेंट सॉल्ट्स एंड अदर आयंस आर प्रेजेंट एज मेन कंपोनेंट ऑफ द सलाइवा। उसके अलावा आप एक यहाँ पे एंजाइम भी देख सकते हैं द अमाइलेज, ठीक है। दिस इज़ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स पार्शली इन द ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला सेगमेंट है दैट अकर्स इन द ओरल कैविटी, उसमें अमाइलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज इट डाइजेस्ट्स एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्शली ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ओरल एब्जॉर्प्शन की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था दैट इज़ प्रोवाइडेड by the saliva coming from the major and the minor salivary glands. Major salivary glands हमने already तीन डिस्कस कर लिए, minor जो हैं they are present within और buccal mucous membrane जो कि हमारा cheeks का inner वाला part आ जाता है और जो हमारे lip की inner surface है, ठीक है, उसके ऊपर भी minor salivary glands present होते हैं जिसमें से basically mucus secrete होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड और ज़्यादा लुब्रिकेटिंग हो जाता है एंड ऑब्वियसली सो दैट इट कैन बी मूव्ड टू द
नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ द इसोफेगस। इसके अलावा जो एंजाइम है जिसका कि हमने जिक्र भी किया अमाइलेज का, दैट पार्शली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स द कार्बोहाइड्रेट्स देयर एंड देन विद इन द ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी में जो डाइजेशन है उसके फेजेस हमने कवर कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। स्टार्टेड ऑफ विद सिलेक्शन ऑफ फूड, विद मेस्टिकेशन आई, फिर हमारे पास जो है वो ओरल एब्जॉर्प्शन आ जाती है जिसमें लुब्रिकेशन और फूड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, जिसमें कि सलाइवा का बहुत अहम रोल होता है। This is the end of our video. Do like our video, share it with other students as well. Comment section में do ask the questions relevant to this video. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.